والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات، یہ صف یعنی جو قطاریں ہوتی ہیں، جو کیو ہوتے ہیں، ان کے پلورل ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے مظالم ہو رہے تھے اور مسلمانوں کے اوپر، اسی زمانے میں یہ سورہ نازل کی گئی ہے۔ اور اس کا جو موضوع اور مضمون عام مکی صورتوں کی طرح ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت اور توحید اور آخرت کا جواب اس کے ساتھ دیا جا رہا تھا کہ آپ کی جو دعوت اس کو تسلیم کرنے میں، یعنی اس کو ماننے میں جس شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا تھا، اس پر جو کفار مکہ ہیں ان کو پرجر طریقے سے وارننگ دی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے، اور آخر میں انہیں صاف صاف خبردار کر دیا گیا ہے کہ جلد ہی اس پیغمبر کا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر غالب آ جائیں گے اور تم اللہ کے لشکر کو خود اپنے گھر کے صحن میں اترا ہوا پاؤ گے۔ اسی سورہ کی آیت میں یہ آئے گا۔ یہ نوٹس دیا جا رہا ہے، اس زمانے میں دیا گیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے آثار دور دور تک کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ مسلمان جن کو ان آیات میں اللہ کا لشکر کہا گیا ہے، بری طرح ظلم اور ستم کا نشانہ بن رہے تھے۔ ان کی 3/4 تعداد ملک چھوڑ کر نکل گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 یا 50 صحابہ مکہ میں رہ گئے تھے اور انتہائی بے بسی کے ساتھ ہر طرح کی زیادتیاں برداشت کر رہے تھے۔ ان حالات میں کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان ایک دن کامیاب ہوں گے اور اسی مکہ میں آ کے وہ مکہ والوں پر غالب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں تفہیم اور ترغیب یعنی ترغیب دینے کا، ایک طرح سے رغبت دلانے کا بھی پورے توازن کے ساتھ فرمایا ہے اور توحید اور آخرت کے عقیدت کے پر ابھارا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس میں آیتیں ہیں 182 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ سورہ صفات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطار در قطار سب باندھنے والوں کی قسم۔ یہاں دیکھیے پھر سے وہ آیا ہے شروع میں، تو یہاں قسم کھائی جا رہی ہے۔ قطار در قطار سب باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہیں اور سارے مشرکوں کا مالک ہے۔ یہاں پہ 3 بار اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ کھایا گیا ہے قسم، کہ ان فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تینوں گروہ جو ہیں جن کی قسم کھائے، مراد فرشتوں کی گروہ ہے، اور یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے جو راوی ہیں انہوں نے کیا ہے۔ اس میں قطار در قطار سب باندھنے والوں کا اشارہ اس طرف ہے کہ تمام فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لاتے ہیں اور جو ان کے حکم کی پلاننگ کرتے ہیں، اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور اسی کی اطاعت و بندگی میں بالکل مطلب ایک ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے کہ ایک کیو لگا ہو، احترام کے ساتھ، اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ ڈانٹنے اور پھٹکارنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہانکتے ہیں، جیسے کہ سورہ رعد میں ہم نے پڑھا تھا
कि बादलों को हाँकते हैं और उसी जो हाँकने की डांट फटकार होती है वो गरज के तौर पे हमें सुनाई देती है। कलाम नसीहत सुनाने से मुराद ये है कि फिर उनकी कसम जो कलाम नसीहत सुनाने वाले हैं कि उन फरिश्तों में वह भी हैं जो हक की तरफ तवज्जो दिलाते हैं और इस खिदमत को अंजाम देते हैं जो कि आज के ज़माने में जो हो रही है, जो अहकाम आ रहे हैं और उनके तालीमात के सूरत में भी नाजिल के जरिए से अंबिया पे नाजिल होती है, यानी जो वही के लाने वाले हैं। और अल्लाह ताला जो है तमाम उन चीज़ों का मालिक है जो ज़मीन और आसमान में है और सारे मुशरिकों का मालिक है। सारे मुशरिकों का मालिक है कि जैसे कि सूरज मशरिक से निकलता है यानी ईस्ट से निकलता है और हम देखते हैं कि कभी सर्दियों में एक कोने से निकलते निकलते दूसरे कोने की तरफ से वो निकलता है और फिर डूबने का भी उसका वैसे ही अंदाज होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि सारे मशरिकों का मालिक है। हमने आसमाने दुनिया को तारों की जीनत से आरास्ता किया है और हर शैतान सरकस से इसको महफूज कर दिया है। यह शयातीन मलाए आला की बातें नहीं सुन सकते, हर तरफ से मारे और हाँके जाते हैं और उनके लिए पैहम आजाब है। ताहम अगर कोई उनमें से कुछ ले उड़े तो एक तेज शोला उनका पीछा करता रहता है। जब भी कोई अहम पैगाम आसमान की तरफ से दुनिया के आसमान में आने वाला होता है तो जो शयातीन होते हैं वो किसी तरह से छुप के उस पैगाम को जानने के बारे में छुपे रहते हैं और कुछ सुनगुन पाके वह जमीन वालों में कुछ कानों तक पहुंचाते थे। यहाँ उसी बात का जिक्र हो रहा कि हमने आसमान को तो खूबसूरत बनाया है, तारों के जरिए से उसकी खूबसूरती में और इजाफा कर दिया है और उसको शैतान के से महफूज कर दिया है कि जब भी कोई शैतान मलाए आला पर उस बात की सुनगुन लेता है हम साहबे साकिब के से उसका पीछा करते हैं। और एक शोला जो कभी कभी हमने देखा है कि आसमान से तेजी से, कभी अंधेरी रात हो और छत पर हम कभी रहते हैं तो आसमान से एक लंबा सा शोला की तरह नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कोई विष मांगने वाली चीज है, यह अल्लाह की तरफ से एक निजाम है जो शैतानों को मारने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। अब उनसे पूछो उनकी पैदाइश ज्यादा मुश्किल है या उन चीजों की जो हमने पैदा कर रखी है। उनको तो हमने लेसदार गारे से पैदा किया है। तुम अल्लाह की कुदरत के करिश्मों पर हैरान हो और यह उसका मजाक उड़ा रहे हैं। समझाया जाता है तो समझ कर नहीं देते, कोई निशानी देखते हैं तो उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं और कहते हैं यह तो सरीह जादू है। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जब हम मर चुके हों और मिट्टी बन जाएं और हड्डियों का पिंजर रह जाए तो उस वक्त हम फिर जिंदा करके उठा खड़े किए जाएंगे? और क्या हमारे अगले वक्तों के आबा व अजदाद भी उठाए जाएंगे? उनसे कहो हाँ, और तुम खुदा के मुकाबले में बेबस हो। हमेशा एक ही इनकार इसी बात का कि हम मर जाएंगे तो कैसे उठाए जाएंगे। और यही चीज है जो आखिरत का भी इनकार करती है कि इस बात पर कि हम फिर दोबारा उठेंगे, इस बात को हम तस्लीम ही नहीं करेंगे तो फिर हम ना तो जवाबदेही का एहसास कर सकते ना अपने अमाल के हिसाब का, तो फिर वो आखिरत का भी इनकार है। बस एक ही झिड़की होगी और एकाएक ये अपनी आंखों से वह सब कुछ जिसकी खबर दी जा रही है देख रहे होंगे। उस वक्त यह कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, या तो यौमुल सजा है, यह वही फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे। हुक्म होगा घेर लाओ सब जालिमों और उनके साथियों और उन माबूदों को जिनकी वह खुदा को छोड़कर बंदगी किया करते थे। फिर उन सब को जहन्नम का रास्ता दिखाओ और जरा उन्हें ठहराओ, उनसे कुछ पूछना है। अल्लाह ताला जमा करे बस एक पल में, हम नहीं जानते कि वो कौन सा पल होगा, और एक पल में क़यामत बर्पा होगी और सारे लोग इकट्ठा होंगे और उन मुजरिमों में अल्लाह ही बेहतर जाने कौन होगा। अल्लाह ताला हमें बचाए ऐसे लोगों से के साथ से कि हम उस गिरोह में शामिल हों। उस वक्त यह कहेंगे कि कैसे हम तो मान ही नहीं रहे थे और ये तो जजा का दिन हमारे सामने आएगा। और अल्लाह ताला फिर फरिश्तों को हुक्म देंगे कि उनको घेर लाओ, उन जालिमों को और उनके साथियों को, उन माबूदों को, सबको, यानी जो जिनका ये साथ देते थे, जो जिस मामूदों को
के पीछे वो लगे रहते थे और उन माबूदों के मोहब्बत में वह अल्लाह के तौहीद की दावत को कबूल नहीं करते थे, रसूल की दावत को, और फिर उन सबको जहन्नम का रास्ता दिखा। लेकिन फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि उन्हें ठहरा जी नेट प्रॉब्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 30। वह जवाब देंगे, नहीं बल्कि तुम खुद ईमान लाने वाले न थे, हमारा तुम पर कोई जोर न था, तुम खुद ही शरकस लोग थे। आखिरकार हम अपने रब के इस फरमान के मुस्तहक हो गए कि हम अजाब का मजा चखने वाले हैं, सो हमने तुमको बहकाया, हम खुद बहके हुए थे। अल्लाह ताला बेशक जानता है कि लोग क्या करके आए थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को रोक करके उनसे सवाब जवाल करके उन्हीं के मुंह से इस बात का इकरार करा रहा है कि वो लोग क्या कह रहे होंगे। जो उन जिसकी जो लीडर जो थे, जो उनके माबूद थे, जिसकी पैरवी करते थे वो लोग, वह लोग जवाब देंगे कि हम तो अपने ही खुद बहके हुए थे और हमने तुमको बहकाया। वो अपना जो गलत रवैये का है उस दिन वह इकरार कर लेंगे। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 33, इस तरह वह सब उस रोज आजाब में मुश्तरिक होंगे, यानी सब बराबर के हकदार होंगे। हम मुजरिमों के साथ यही कुछ किया करते हैं। यह वह लोग थे कि जब उनसे कहा जाता अल्लाह के सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं है, तो यह घमंड में आ जाते थे और कहते थे, क्या हम एक शायर मजनून की खातिर अपने माबूदों को छोड़ दें, हालांकि वह हक लेकर आया था और उसने रसूलों की तस्दीक की थी। अब उनसे कहा जाएगा कि तुम लाजिमन दर्दनाक सजा का मजा चखने वाले हो, और तुम्हें जो बदला भी दिया जा रहा है उन्हीं उन्हीं अमाल का दिया जा रहा है जो तुम करते रहे हो। हमेशा हम लोग भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और कहते हैं कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन क्या सचमुच हम अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं रखते? अपने ख्वाहिशातों के माबूद, अपने नफ्स के माबूद, अपने दुनिया के कितनी चीजों के माबूद बना के हमने रखे हैं। और रसूल जो बात बता रहे हैं उन आयतों पर क्या हम बिल्कुल ईमान लाते हैं और उन पे अमल करते हैं? ये सारी चीजें अपने आप को जायजा लेने वाली हैं, दिलाने वाली हैं कि हम भी उन लोगों की तरह उस दिन दर्दनाक सजा के मुस्तहक न बन सके। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मगर अल्लाह के चीदा बंदे, यानी जो मुखलिस बंदे हैं, इस अंजामे बद से महफूज होंगे। उनके लिए जाना बुझा रिज्क है, हर तरह की लजीज चीजें और नेमत भरी जन्नतें, जिनमें वह इज्जत के साथ रखे जाएंगे। तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे, शराब के चश्मों से सागर भर भर कर उनके दरमियान फिराए जाएंगे। चमकती हुई शराब जो पीने वालों के लिए लज्जत होगी, न उनके जिस्म को उससे कोई जरर होगा और न उनकी अकल उससे खराब होगी। और उनके पास निगाहें बचाने वाली खूबसूरत आंखों वाली औरतें होंगी, ऐसी नाजुक जैसे अंदर के अंडे के छिलके के नीचे छिपी हुई झिल्ली। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत नक्शा है इस जन्नत का।
अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस। यह चीजें हैं जो कि अल्लाह ताला जन्नत के बारे में बता जा रहा है, बल्कि इससे भी और ना जाने अल्लाह ताला ने क्या क्या छुपा के रखा है जो कि हम सोच भी नहीं सकते और न तसव्वुर कर सकते हैं। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, फिर वह एक दूसरे की तरफ मतवज्जो होकर हालात पूछेंगे। वहां जब वह एक जगह उनको मिल जाएगी जहाँ पे आराम और इत्मीनान की जगह होगी, तब उन्हें अपने दूसरों के भी हालात पूछने की फिक्र होगी। फिर वह एक दूसरे की तरफ मतवज्जो होकर हालात पूछेंगे। उनमें से एक कहेगा, दुनिया में मेरा एक हमनशी था जो मुझसे कहा करता था, क्या तुम भी तस्दीक करने वालों में से हो? क्या वाकई जब हम मर चुके होंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बनकर रह जाएंगे तो हमें जजा व सजा दी जाएगी? अब क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वह साहब कहाँ है? वह उसको याद करेगा जो उससे पूछा करता था। यह कहकर ज्यों ही वह झुकेगा तो जहन्नम की गहराई में उसको देख लेगा और उससे खिताब करके कहेगा, खुदा की कसम, तू तो मुझे तबाही कर देने वाला था। मेरे रब का फजल शामिल हाल ना होता तो मैं आज उन लोगों में से होता जो पकड़े हुए आए हैं। अच्छा, तो क्या अब हम मरने वाले नहीं हैं? मौत जो हमें आनी थी वह बस पहले आ चुकी, अब हमें कोई आजाब नहीं होना। एक गलत दोस्त का, एक गलत साथी का यहाँ नक्शा खींचा गया है, जो कि पूछता था लेकिन उस बात को तस्लीम नहीं करता था और उस दोस्त को भी कहता था कि तुम इस बात को तस्लीम नहीं करो। इस पे वही दोस्त कह रहा है कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान लिया होता तो तबाह हो गया, क्योंकि वह जहन्नम में उसको देखेगा। हमें अल्लाह ताला अच्छी दोस्ती नसीब फरमाए। यकीनन यही अजीमुस्सान कामयाबी है। ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। जन्नत जो है वह कामयाबी की जो है हाइट है, और ऐसी कामयाबी के लिए अमल जब बेहतर करेंगे तभी यह कामयाबी हासिल होगी। बोलो, यह जियाफत अच्छी है या जख्म का दरख्त? बताया जाता है कि जहन्नम में एक ऐसा दरख्त होगा जो आग के बीचों बीच वो दरख्त होगा, और उसका फल इतना कड़वा कसला होगा कि अगर जमीन पर उसका एक बूंद उस फल के रस का गिर जाए तो पता नहीं कितने दूर की जमीन बिल्कुल काली हो जाएगी उसके जहर के असर से। हमने उस दरख्त को जालिमों के लिए फितना बना दिया है। वह एक दरख्त है जो जहन्नम की तह से निकलता है। उसके शकूफे ऐसे हैं जैसे चट्टानों के सर। जहन्नम के लोग उसे खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर इस पर पीने के लिए उनको खौलता हुआ पानी मिलेगा और उसके बाद उनकी वापसी उसी आती से दोजख की तरफ होगी। यह वह लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया और उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़े चले। हालांकि उनसे पहले बहुत से लोग गुमराह हो चुके थे और उनमें हमने तंबीह करने वाले रसूल भेजे थे। अब देख लो कि उन तंबीह किए जाने वालों का क्या अंजाम हुआ है। उस बद अंजामी से बस अल्लाह के वही बंदे बच्चे हैं जिन्हें उसने अपने लिए खालिस कर लिया है। मुखलिस बंदे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला अपने मुखलिस बंदों के जरिए से कैसे हिदायत भी मुखलिस बंदों को देता है और उनके जरिए से दूसरों को भी हिदायत मिलती है। वो हमेशा एक इस्लाह का काम करने वाले होते हैं, दूसरों की भलाई का काम करने वाले होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा बंदे होते हैं वो। और अल्लाह ताला इन्हीं बंदों को, जो कि बस अल्लाह के बंदे वही हैं जिन्हें उसने अपने लिए खालिस कर लिया है। हमको इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा था, तो देखो कि हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले थे। यानी उन्होंने दुआ की थी और उनको पुकारा था, और उस दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने उनके कौम को मुब्तला कर दिया था सैलाब में, और उसको और उसके घर वाले को करबे अजीम से बचा लिया और उसी की नस्ल बाकी रखी। उसके बाद की नस्लों में इसकी तारीफ व तौसीफ छोड़ दी। सलाम है नूह अलैहिस्सलाम पर तमाम दुनिया वालों में।
हम नेकी करने वालों को ऐसे ही सजा दिया करते हैं। दर हकीकत वह हमारे मोमिन बंदों में से था, फिर दूसरे गिरोह को हमने गर्क कर दिया। यानी जो ईमान लाए, किसी भी वक्त हो, किसी भी कौम के हो, उनको अल्लाह ताला बचा लेता है, और जो इनकार करने वाले होते हैं वो हमेशा अल्लाह के अजाब के मुस्तहक होते हैं। और नूह अलैहिस्सलाम ही के तरीके पर चलने वाला इब्राहिम अलैहिस्सलाम था। जब वह अपने रब के हजूर कल्बे सलीम लेकर आया, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, यह क्या चीजें हैं जिनकी इबादत कर रहे हो? क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ गड़े हुए हो, माबूद चाहते हो? आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? फिर उसने तारों पर एक निगाह डाली और कहा, मेरी तबीयत खराब है। चुनाचे वह लोग उसे छोड़कर चले गए। उनके पीछे पीछे चुपके से वह उन माबूदों की मंदिर में घुस गया और बोला, आप लोग खाते क्यों नहीं है? क्या हो गया? आप लोग बोलते भी नहीं है। इसके बाद वह उन पर पिल पड़ा और सीधे हाथ से खूब जरबें लगाईं। बस आकर वह लोग भागे भागे उसके पास आए। उसने कहा, क्या तुम अपनी ही तराशी हुई चीजों को पूजते हो? हालांकि अल्लाह ही ने तुमको भी पैदा किया है और इन चीजों को भी जिन्हें तुम बनाते हो। उन्होंने आपस में कहा, इसके लिए एक अलाव तैयार करो और उसे दहकती हुई आग के ढेर में फेंक दो। उन्होंने इसके खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाहिए थी, मगर हमने उनको नीचा दिखा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ, वही मेरी रहनुमाई करेगा। ऐ परवरदिगार, मुझे एक बेटा अता कर जो सालेहों में से हो। यहाँ दुआ है आयत नंबर 100 में, रब्बी हबली मिनस सॉलिहीन। इस दुआ के जवाब में हमने उसको एक हलीम बुर्दबार लड़के की बिसारत दी। वह लड़का जब इसके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया था, तो एक रोज इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। अब तो बताओ तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा, अब्बा जान, जो कुछ आप को हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालिए। आप इंशाअल्लाह मुझे साबिरों में से पाएंगे। एक फर्माबरदार बेटे का यहाँ पे नक्शा खींचा गया है। आखिर को जब उन दोनों ने सरे तस्लीम खब कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया और अपने निदा दी कि ऐ इब्राहिम, तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जजा देते हैं। यकीनन यह एक खुली आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी फिदिये में देकर उस बच्चे को छुड़ा लिया। यह कुर्बानी के सिलसिले में जो वाकया पेश आया था, उस वाकये को यहाँ बयान किया जा रहा था। और अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश की थी। हम पर जब आजमाइश आती है तो अल्लाह की किन किन आजमाइशों में हम पूरे उतरते हैं और उसके मुताबिक हम काम करते हैं, और इसकी तारीफ व तौसीफ हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। सलाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जजा देते हैं। यकीनन वह हमारे मोमिन बंदों में से था और हमने उसे इसहाक की बिसारत दी, एक नबी सॉलिहीन में से, और इसहाक को बरकत दी। अब इन दोनों की जुर्रियत में से कोई मोहसिन है और कोई अपने नफ्स पर सरीह जुल्म करने वाला है। एक नेक साले बाप की औलादों में से कुछ लोग नेक होते हैं और कुछ लोग नेक नहीं होते हैं, जैसे कि हमने नूह अलैहिस्सलाम के भी वाक़े से देखा और यहाँ भी। अब हम यहाँ रुकते हैं आयत नंबर 113 पर।